Good evening, ladies and gentlemen. It's an unprecedented and appalling blot on our democracy. Today, we as a nation hang our heads in shame as our parliament was reduced to an arena of the absurd. Here's why. The Vice President of our nation, Chairman of the Rajya Sabha, as he performs that function, was mimicked and mocked by our own honorable members of parliament as disruptions and sloganeering shackle the Sansad, including placards being carried into the well of the House despite an agreement by members of parliament in the Business Advisory Committee that they would not do so. And what happened after that? 141 MPs have been suspended in both houses of parliament. Even the Prime Minister was not spared, and his picture was morphed in posters carried by the opposition in parliament. This is the plight of our democracy, which has been reduced to this theatre of the absurd. We voted them to power to be our voice in the parliament. But do these actions represent you and me? Let's tell you how the day began. It all started at the steps of the Makar Dwar in Parliament. Opposition leaders led by Rahul and Sonia Gandhi gathered to protest against the suspension of 92 members of Parliament, the suspension that happened yesterday. But the Trinamool Congress Member of Parliament, Kalyan Banerjee, grabbed the spotlight by mimicking Vice President Jagdeep Dhankar. He can be seen in these videos speaking and gesticulating animatedly as he mocked the Vice President for being a yes man. Not only did no one stop him, opposition members of parliament can be seen cackling and doubling up with laughter. In fact, Rahul Gandhi cheered him on and even pulled out his phone to videograph this insult and mimicry. Standing next to Rahul Gandhi is Lieutenant K.C. Venugopal burst into fits of laughter. RJD Member of Parliament Manoj Jha too can be seen guffawing. Is it a joke to mock the chairman of the Rajya Sabha, the Vice President of India? Watch what happened and you, the viewers, decide for yourself. Modi Sarkar, down. Mr. Rai, you are a lawyer. I am a you are a lawyer. I am a listen, Mr. Nariman is not a good lawyer. How many cases is not? I have done it significantly. I have done it. I am great. You must understand. My spine is so straight. You, Mr. Gandhi, you must understand. You must understand that I have been appointed here only to save Narendra Modi. Understand it. My spine is, you see, my spine is very straight, very straight. I'm so tall, I'm so tall. My spine is so straight. What followed was complete pandemonium in the House. Disruptions and sloganeering shackled the Sansad. Some opposition members of parliament also stormed into the well of the House towards the Speaker's chair. Speakers of both the Houses, Chairman in Rajya Sabha and Speaker Om Birla in Lok Sabha, cracked the whip, and a total of 141 opposition MPs were suspended in both houses. Vice President Jagdeep Dhankar said he was pained that a son of a farmer was ridiculed by the opposition. Listen in. आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो। मैं तो यही कह सकता हूं, सद्बुद्धि आए। कुछ तो सीमा होती होगी। A senior leader of your party videographing another member of another party, mimicry of the chairman, mimicry of speaker, how ridiculous, how shameful, how unacceptable. On Instagram, Mr. Chidambaram, your party put a video which was withdrawn later on. That was shame to me.
You used Twitter, official handle of the spokesperson, to demean me, insult my background as a farmer, insult my position as a Jat. Till now, 141 Vipaksh MPs have been suspended. The voices of those they represent have been silenced. 94 members of parliament from the India bloc in the Lok Sabha face suspension, while 46 of them in Rajya Sabha also suspended. And that means the strength of the opposition in Lok Sabha has been reduced to a mere 108, while in Rajya Sabha they have just 85 MPs remaining. Not only was the Vice President mocked, but even Prime Minister Modi was derided. Opposition MPs displayed mock pictures of Prime Minister Modi showing his mouth zipped. In violation of parliamentary rules, they brought those posters inside Parliament and raised slogans. Remember, earlier in the day, the Prime Minister, during the parliamentary board meeting, parliamentary party meeting, had lashed out at the Vipaksh, saying they will always remain in the opposition because they are losing their opportunity to carry out the people's voices. Listen in to his generals summarizing the Prime Minister's message earlier this morning. पार्लियामेंट इंसिडेंट के बारे में उन्होंने कहा, जो भी व्यक्ति डेमोक्रेसी में, प्रजाप्रभुत्व में उनका विश्वास है, इसको घोर खंडन करना था। इट इज मोर डेंजरस। जो एक्ट हुआ है उससे ही कंसर्न, उतना ही कंसर्न इस भाषा का है, ये भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख किया है। प्रधानमंत्री जी का आज सांसदों को बहुत ही प्रभावी और सामयिक विषयों पर बड़ी गंभीर टिप्पणी हुई है। आज जो तथाकथित इंडिया गठबंधन, उसका उद्देश्य है नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना, और हम जो यहाँ बैठे हैं उनका उद्देश्य है भारत का भविष्य उज्जवल करना। और ये जो ब्लॉक कर रहे हैं, जो अवरोध पैदा कर रहे हैं, ये उनकी हताशा है 3 प्रदेशों में हार के कारण। But the opposition, of course, was unrepentant about the way the Vice President was mocked. They instead outraged over the suspensions and said democracy is being crushed. Listen in to the war of words. Parliament has been totally delegitimized. This is to lay the framework of passing the most draconian laws in Parliament, which will turn this country into a police state. Mechanically, a list was read out like an attendance register, and it was said that all of us are suspended. All we've been asking is for a statement from the Home Minister, and our demand has been changed. But to mechanically suspend all of us, I guess that's the aim of the government, is to have an opposition-less parliament. Opposition चाहे मर जाए, कुछ भी हो जाए, उनको नहीं दिखाते हैं। आवाज उनकी सुनाई देती है। ये तो, this is not democracy. This is a mockery of democracy. आप कुर्सी में बैठ के अपनी पीड़ा का व्यक्त करते, अरे हमारी पीड़ा का क्या? हमारे ऑपोजिशन के इतने मेंबर्स को कल आपने बाहर कर दिया, आज जो वेल में गए उनको क्यों नहीं बाहर कर रहे हैं? So what is this system of justice, I want to know. So, ladies and gentlemen, the legitimate question we're asking on the News Hour tonight: who has derided our democracy? That's the question, and that's the debate. Coming up on the other side. You're watching the News Hour at 9. Debate number 1 on Times Now. Super Prime Time. Joining the debate tonight, Shehzad Poonawala, national spokesperson of the BJP, Gurjeet Singh Aujla, suspended member of parliament from the Congress party, D. Sivadasan, suspended member of parliament from the CPM. Also joining me this evening, Girdhari Yadav, suspended MP of the JDU. My first question to Gurjeet Singh Aujla of the Congress. Aujla Sahab, I want to ask you, is this the manner in which members of parliament should actually be treating the chairman of the House, the Vice President of India, by mimicking him on the steps of Parliament, other members of Parliament laughing, clapping, making videos? Have we reduced the Parliament into a street play, a street,
completely showing the country what respect really existed for the parliament, have we actually brought down the level of our own temple of democracy while raising our voices for whatever issues you wanted to raise? देखिए, पहली बात तो ये है, मैं आपके समक्ष कहना चाहता हूं कि ये कोई भी बात है, ये तो जांच का विषय हो सकता है, क्यों हुआ क्या हुआ, लेकिन ये सब यहां तक पहुंचने के लिए जो पिछले 4-5 दिन में हो रहा है, क्या देश वो भी देख रहा है ना। जब 13 दिसंबर को वो लोग घुसते हैं, उसके बाद विपक्ष मांग क्या रहा है, जिसको आप सस्पेंड कर दिया, 141 MP हिस्ट्री में आप सस्पेंड कर दिए हैं, वो मांग क्या रहे हैं आपसे? मांग तो यही रहे हैं ना। हमारे जो मानयोग होम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो हाउस में आए, हाउस के मेंबर हैं, वो हाउस के मेंबर हैं, उस हाउस में कुछ आदमी, कुछ गलत हुआ है, घटना घटी है, तो जवाब किसने देना है? एक घर का मुखिया घर में कोई पत्थर भी फेंक दे तो आसपास नहीं टहलता रहता, वो घर में आके पूछता है कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन भाग क्यों रहे हैं? कभी मीटिंग से जवाब दे रहे हैं, किसी प्रेस नोट दे रहे हैं, कोई ट्वीट कर रहे हैं, ये क्या तरीका है? जब पार्लियामेंट सबसे बड़ी लोकतंत्र का मंदिर है, जहां हम चुन के आए हैं, और वो उस दिन 13 दिसंबर को हर बार कहते हैं कि हमने कुछ ना कुछ करना जो देश के दुश्मन है, वो अलग बात है, वो तहकीकात का विषय है, लेकिन वो एक हमला था उस दिन, सेम डे जिस दिन टेररिस्ट ने पार्लियामेंट को घेर के 22 जवानों को शहीद किया। हम लोग श्रद्धांजलि देके वहां से आ रहे हैं, हम मौके पे गवाह हैं, आपके हाथ जोड़ के ये मांग रहे हैं कि भाई प्राइम मिनिस्टर साहब हाउस में आ जाओ, होम मिनिस्टर साहब हाउस में आ जाओ, आके जवाब दे दो, क्योंकि वो चीज प्रोसीडिंग में आ जाएगी। हम ये मुंह से बोलना नहीं चाहते कि ये लैप्स हुआ है, सारा देश देख रहा है, हिस्ट्री बनेगी, फ्यूचर में सब लोग जानेंगे कि ये क्या होता है। इस दिन वो लेके नहीं आना चाहते कि एक होम मिनिस्टर का फेलियर है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर का फेलियर है। चलिए, तो इसलिए आप खड़े होकर बाहर सभापति का मजाक उड़ा दोगे, बाहर खड़े होकर सभापति का आप इस तरह से मखौल उड़ा दोगे कि मैंने नहीं उठाया। नहीं, पर आपने नहीं उठाया, लेकिन आपकी इंडिया अलायंस की सहयोगी पार्टी के MP ने उठाया, और राहुल गांधी वहां हंस भी रहे थे और वीडियो भी मैं कह रहा हूं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को ये पिरत किसने डाली है? जब एनडीए था, एनडीए की जब चूड़ियां डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को देने जाते थे, तब वो क्या था? एक प्राइम मिनिस्टर को चूड़ियां पहनाना क्या ये अच्छी बात थी? आप हिस्ट्री नहीं जानते ये परंपरा क्यों शुरू की है? अब 141 जब सस्पेंड की है, जब कोई दूसरा आएगा वो कम करेगा। ये परंपरा क्यों डाल रहे हो आप लोग? ये लोकतंत्र है, कोई तानाशाही थोड़ा ना है। शहजाद थोड़ा ना कि आप बोलेंगे नहीं। औजला साहब ने बहुत दो संगीन इश्यूज उठाए हैं, जवाब दीजिए। सबसे पहले तो मैं निराश हूं, मैं खुद स्वयं पार्लियामेंट में नहीं हूं, परंतु यदि कोई भी पार्लियामेंटेरियन ये जस्टिफाई करे, चाहे किसी भी कारण के आधार को लेकर, कि जिस प्रकार से देश के उपराष्ट्रपति जो सभापति है राज्यसभा के, उनका मिमिक्री करके वीडियो बनाना, इसको अगर जायज ठहराने की नौबत आ जाती है, तो पता करना पड़ेगा कि कांग्रेस आज किस स्तर पर आ चुकी है। और ये पहले भी तो कांग्रेस ने किया ही है, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों का अपमान। आदिवासी राष्ट्रपति बनी, उन्होंने क्या गलत किया था? उनको राष्ट्रपति कौन कह रहा था? अधीर रंजन चौधरी। किसने कहा कि दुष्ट मानसिकता की? अजय कुमार। किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी, हो सकता है आपके हजार उनसे डिफरेंसेस हो, मोदी की कब्र खुदेगी, ओबीसी समाज को गाली जिसके लिए कन्विक्ट हुए राहुल गांधी, और अब उपराष्ट्रपति। और इसके ऊपर देखिए, मैं वैसे तो नहीं देखता हूं, परंतु वो जाट समाज, ओबीसी समाज से आते हैं, एक गरीब शोषित वंचित समाज से आने वाले व्यक्ति जब पदासीन होते हैं संवैधानिक पद पर, तो कांग्रेस की ये अहंकारी और सामंती सोच है जिसकी वजह से ये लोग इस प्रकार के कृत्य करते हैं। और पीछे चले जाएंगे मान्यवर, तो फिर तो आप लोगों ने विपक्ष के सारे नेताओं को 1977 में जेल में डाल दिया था। इस लिहाज से तो आपको कभी कुछ बोलने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए औजला जी। 1984 में तो खून की नदियां बहा दी गई थी,
कितने सिखों का नरसंहार किया था। तो कांग्रेस पार्टी को तो कभी औचित्य ही नहीं होना चाहिए बोलने का। ये जस्टिफाई किया जा रहा है कि हमने ये मांग रखी थी, और क्या मांग रखी थी। आप मामले को गंभीर भी लेते हैं। आपके ये पार्टनर है आरजेडी के नेता शिवानंद तिवारी, वो कहते हैं तो अपराध ही नहीं है, छोटी सी बात है। संजय राउत कहते हैं भूले भटके नौजवान है। अधीर रंजन चौधरी कहते हैं बेरोजगारी से हुआ। आप कह रहे हैं सिक्योरिटी और टेररिस्ट थ्रेट है। आप तय कर लो कौन सा थ्रेट है, नहीं है। दूसरी बात ये क्या कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आ जाए। अब बताइए कितना स्टैंड बदलते हैं। पहले जयराम रमेश का ट्वीट है मेरे पास। जयराम रमेश कहते हैं वी वांट स्टेटमेंट ऑफ एचएम। ठीक है भाई, ओके। खड़गे जी का ट्वीट आता है वी वांट स्टेटमेंट एंड वी वांट डिटेल डिस्कशन। ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन में कभी डिटेल डिस्कशन होता है? और अब तीसरा औजला जी स्टैंड लेकर आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री आकर बोले 74 में, 84 में, 94 में, 2004 to 14 जब ऐसे इंसिडेंट्स हुए जहां पर हथियार लेकर लोग घुस गए, आपने प्रधानमंत्री या होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट कराया तो बता दीजिए, वो प्रेसिडेंट फॉलो कर देंगे। आखिरी बात मैं बताना चाहता हूं, देखिए ये मामला क्या है पता है आपको नाविका जी? ये रिकॉर्ड सस्पेंशन नहीं है, ये रिकॉर्ड इंडिसिप्लिन इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले दिन पर जैसे ही टीएमसी ने लीड ले ली, डेरिक ओब्रायन छा गए, तो भाई प्रतिस्पर्धा इतनी है इंडिया अलायंस में कि मैं नेता दिखूं, तो उन्होंने कहा कि हमको इनसे आगे बढ़ना है और इस प्रकार के हथकंडे अपनाने हैं। इसीलिए राहुल गांधी आज जो कृत्य करते हैं। मैं केवल औजला जी से इतना पूछा जाता हूं, ओबीसी समाज से आए हुए उपराष्ट्रपति का इस प्रकार से मखौल उड़ाना, इसको जस्टिफाई किया जा सकता है? हमने रमेश बिरूडी पर कार्रवाई की, हमने कहा कि गलत बोला। अब आप बताओ राहुल गांधी का कृत्य सही है गलत? जवाब दीजिए औजला जी। मैं यही कह रहा हूं कि जो भी हुआ वो जांच का विषय है। किसी ने राहुल गांधी जी ने किसी को कुछ नहीं बोला। राहुल जी तो खुद ओबीसी की बात कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर कि किसी ओबीसी को आपने पूछा नहीं है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, आप जो आपने कोट किए, किसी का ट्विटर कोट किया, किसी का बयान कोट किया है। मैं ये कह रहा हूं उस दिन लोग गुस्से हैं कि नहीं गुस्से 13 दिसंबर को, इस बात पे ये एक पहले तो इसको जस्टिफाई कर लीजिए कि जो 13 दिसंबर को 13 दिसंबर को जो हुआ, और औजला साहब यू वर ऑन दिस चैनल, औजला साहब यू वर ऑन दिस चैनल, वी हैव डिबेटेड, वी हैव डिस्कस्ड व्हाट हैपेंड ऑन द 13th of December was a terror attack, no less. I want to ask you what happened today. आज जो हुआ हमने देखा है नहीं, आज जो हुआ, आज जो वाइस प्रेसिडेंट सभापति का जिस तरह से मखौल उड़ाया गया, आप इसके बारे में क्यों नहीं बताते? आप हर चीज 13 दिसंबर पर जा रहे हैं, आज की बात क्यों नहीं करते? देश का अपमान हुआ है, पूरे देश का। मैं मानती हूं 13 दिसंबर को जो हुआ वो सही नहीं हुआ। आज जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की मिमिक्री हुई है, मखौल उड़ाया गया, उस पर आपकी क्या राय है? उस पर क्या राय है आपकी? उसका हमें जवाब, उसका मेरे को जवाब ही नहीं अभी तक मिला। मैं चश्मदीद था, मैंने पकड़ा जो लाते, ऐसे लगा था जैसे अटैक हो गया है। उसका मेरे को जवाब नहीं मिल रहा पार्लियामेंट में। मेरा जवाब ही दे दो। पार्लियामेंट के ऊपर हुए उस समय, चलिए, जब तक 13 दिसंबर का जवाब नहीं है, आज की बात का जवाब नहीं मिलेगा। आज ये क्लियर हो गया। औजला जी 13 दिसंबर के, ठीक है औजला जी, आपने अपनी बात रखी, आपके पास भी नहीं। हाँ औजला जी, आपने अपनी बात रखी। देखिए औजला जी, हमारे मन में तो कोई शंका शुबा नहीं है। जो 13 दिसंबर 2023 को हुआ वो घटना अति दुर्भाग्यपूर्ण है और आतंक की श्रेणी में आती है, इसलिए यूएपीए का चार्ज लगा। आप ही लोग इसको जस्टिफाई कर रहे थे, भूले भटके लोग हैं। ये संजय राउत का बयान है, बेरोजगारी राहुल गांधी का बयान है। तो आप पहले क्लैरिफाई कर दो कि आप कितनी गंभीरता से देखते हो। और दूसरी बात, जो क्लियर कट मामला है, वीडियो बनाया गया मिमिक्री करते हुए राहुल गांधी के द्वारा, अच्छा वो छोड़ दीजिए, अभी टाइम्स नाउ अगर आप दिन में देखते तो आपको दिखाई देता मणिकम टैगोर ने ये ट्वीट किया है। इसको जरा जूम कीजिए। मैं औजला जी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। औजला जी, इसमें दिखाया गया है उपराष्ट्रपति जी जो सभापति है राज्यसभा के और स्पीकर साहब ओम बिरला सल्यूट ठोक रहे हैं मोदी जी को। मान्यवर, हमने भी वो दिन देखे राजीव शुक्ला जी कैसे डेस्क के पास जाकर उप सभापति जी को क्या क्या बोलकर आते थे राज्यसभा में, हमने वो देखा है कोल्ड डिबेट के समय। परंतु मुझे बताइए, ये तो क्लियर कट ट्वीट किया गया है। आप बताइए इसको कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? मैं यही सवाल गिरधारी यादव जी से पूछना चाहती हूं। गिरधारी यादव जी, मुद्दा यह है कि आप हो ना हो, ये सरकार हो ना हो, ये विपक्ष हो ना हो, ये संसद रहेगा। ये संसद आने वाली पीढ़ियां भी देखेंगी। द नेक्स्ट जनरेशंस विल सी दिस टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी। आज मैं पूछना चाहती हूं, सस्पेंशन हुआ वो सही है गलत है, इस पर आपकी आवाज और इस पर आपका प्रोटेस्ट जायज है, लेकिन उप राष्ट्रपति और
राज्यसभा के चेयरमैन का इस तरह से मिमिक्री करना, क्या ये जायज है? क्या आप चाहते हैं अगली पीढ़ियां ऐसे देखें कि किस तरह से संसद में चेयरमैन का रिस्पेक्ट हुआ करता था? नविका जी, सबसे पहले तो हमारे जो भाजपा के साथी आए हैं उन्होंने कहा कि चेयरमैन ओबीसी है। पहला बात तो चेयरमैन ओबीसी है नहीं, उनको ये पता कर लेना चाहिए। उपराष्ट्रपति जी ओबीसी से नहीं आते, उनको पता ही नहीं है। दूसरी बात, रिस्पेक्ट पाने के लिए रिस्पेक्ट देना भी पड़ता है। हमारे चेयरमैन जो राज्यसभा के हैं, सम्मान्य उपराष्ट्रपति महोदय, वो ऐसा कर रहे हैं लगता है जैसे कोई राजतंत्र का बात हो। ये उपराष्ट्रपति नहीं होकर लगता है कोई किंग बन गए इस देश के। किंग नहीं है वो सभापति इस बीच में से लोगों ने बनाया है उनको कि ये आप चलाइए अच्छे तरीके से इस हाउस को। लेकिन जिस तरीके से वो हाउस चला रहा है, लंबे दिनों से हम लोगों ने भी लोकतंत्र को देखा है, ऐसा सभापति मैंने आज तक इतने जीवन में नहीं देखा कि जिस प्रकार से ये व्यवहार करते हैं सदस्यों के साथ, राज्यसभा सदस्यों के साथ। लगता है कि हमारे राजा हैं ये। आपको तभी सम्मान मिलेगा जब आप दूसरे को सम्मान देंगे। उप सभापति महोदय किसी सांसद को, जो विपक्ष के सांसद हैं, उसको कोई सम्मान नहीं देते हैं। और आप ऐसी बात कर रहे हैं, इस लोकसभा में मैंने मंडल कमीशन को भी देखा। हम लोग तो मंडल के जमाने से अपमान सहते आ रहे हैं। और जब महिला बिल आया था, किस प्रकार हम लोगों ने महिला बिल का विरोध किया था, मजबूती के साथ किया था। ऐसा नहीं कि कोई छुप के किया था हम लोगों ने, और बिल फाड़ने का भी काम हम लोगों ने किया था। हम लोग मंडल के लोग हैं, हम लोग अपमान सहते सहते लोकतंत्र में जानते हैं कितने अहम से, कितने प्राइड से आप कह रहे हैं कि हमने महिला बिल को फाड़ने का भी काम किया था। आपका नाम तो फिर हॉल ऑफ फेम में होना चाहिए। आई हैव अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर। जी, ये तो रिकॉर्ड में है, ये तो रिकॉर्ड में है। हम कोई छूप थोड़े ऐसे बोल रहे, रिकॉर्ड में है। लेकिन तो उसमें भी सस्पेंशन नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग अपने अधिकार के लड़ रहे थे, बोल रहे थे ओबीसी महिला को शामिल करो, नहीं शामिल किया तो फाड़ा। उसमें क्या बात है? अपने बोले मंडल कमीशन लेने में हम लोगों ने जो लड़ाइयां लड़ी है, आज आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी उस मंडल को समाप्त करना चाहता है। उसकी लड़ाई आगे भी लड़ते रहेंगे। और जो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री ओबीसी है, वो कहां से ओबीसी है? जब एक सेकंड, नाविका, वन सेकंड, नो प्लीज, वन सेकंड। आई हैव अ वेरी बिग पॉइंट ऑफ ऑर्डर। नाविका, आई हैव अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर। शहजाद पूनावाला जी पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट, नाविका जी, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धांकर, हु कम्स फ्रॉम जाट समाज फ्रॉम राजस्थान झुंझुनू, वेयर इट इज अ ओबीसी कैटेगरी. And he is the first OBC Vice President of India. Please, you can ask your research team also to check it. I am showing you the news report. You can check it on your own. But at least you should not now insulting Jagdeep Dhankar. This man is insulting entire Jat Samaj. ये रिपोर्ट है जो शहजाद पूनावाला जी दिखा रहे हैं। Vice President of India. What is he saying? He should apologize immediately to Vice President of India. यूपीएससी के लिस्ट में जाट समाज ओबीसी नहीं है भाई। वो आते हैं राजस्थान में आते हैं और कुछ ऐसे अखबारों ने उन्हें ओबीसी कहा है, जो अखबार कहा जाता है ना, आजकल तो मीडिया भी डिवाइड किया है, वो बॉयकॉटेड अखबार नहीं है, वो बॉयकॉटेड चैनल नहीं है। लेकिन मुद्दा ये है गिरधारी यादव जी, आप इतने फख्र से कह रहे हैं, आप इतने फख्र से कह रहे हैं कि आपने तो महिला बिल को भी फाड़ा था, तब भी सस्पेंड नहीं हुए, तो आज सस्पेंड करने की नौबत क्यों आ गई? यही कह रहे हैं ना आप? यानी कि बहुत आपने, हम लोगों ने अधिकार के लिए हमने कहा ओबीसी में महिला रिजर्वेशन में ओबीसी महिला को शामिल करिए, तब मानेंगे। आज भी लड़ाई हम लोग जारी रखे हैं, ओबीसी महिला को एक वाक्य, ओबीसी महिला को ला। जस्ट वन लाइन सर, मुझे एक बात बताइए सर, वन लाइन सर, एक लाइन। ये हिंदू है, ओबीसी नहीं है, हिंदू है। मतलब क्या हिंदू ओबीसी नहीं होते? ओबीसी हिंदू नहीं होते? आप क्या कहे जा रहे हैं मान्यवर? क्या बोले जा रहे हैं आप कह रहे हैं कि वो हिंदू है, ओबीसी नहीं है, मतलब देश के ओबीसी हिंदू नहीं है? तो अरे भाई, क्या कहे जा रहे हो आप? लड़ाई तो कल्याण सिंह ओबीसी थे, हिंदू नहीं थे क्या? आप लड़ाई क्या बोले जा रहे हैं? नहीं, तो ये बताइए, जब ट्राइबल प्रेसिडेंट बनी थी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, हमारे देश की राष्ट्रपति बनी थी, तो किसने कहा था कि ये राष्ट्रपत्नी थी? नहीं, आप अगर ओबीसी और मंडल के इतने हिमायती हैं,
और दूसरा बात नहीं, यह है, नाविका, उन्होंने अभी कहा कि ओबीसी हिंदू नहीं होता। कोविंद जी का और सम्मान्य, एक सेकंड सर, आपने अभी कहा जितना अपमान इस देश सर, के एक सेकंड सर, एक सेकंड किया है, किसी ने नहीं किया। 10 सेकंड नाविका बस। में आपने लाया, उद्घाटन में लाया, ऐसा है, सुनिए सुनिए, नहीं हम डाइवर्ट नहीं होंगे। आपने अभी कहा, अभी आपने कहा सर ओबीसी हिंदू होते हैं लेकिन हिंदू ओबीसी नहीं होते, ये क्या सवाल है शहजाद पूछ रहे हैं? मतलब कि एक सेकंड, अरे भाई ओबीसी को हिंदू बनाना चाहते हैं। अच्छा सुनिए, अब मेरी बात हो जाने हिंदू नहीं हूं मैं, ओबीसी, मेरी बात हो जाने, लड़ाई तो इसी बात पर है ना। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जो ओबीसी है वो हिंदू नहीं है? क्या कहे जा रहे हैं आप सोच विचार के तो बोलिए। आप पूरे ओबीसी समाज को गैर हिंदू बता रहे हैं, तो ओबीसी समाज क्या मुस्लिम है? ओबीसी समाज क्रिश्चियन है? ये ओबीसी को भी हिंदू से लड़वाना चाह रहे हैं? मतलब किस प्रकार की वैमनस्य भरी मानसिकता है? अब बीच में मत बोले मान्यवर, आपके बीच में मैंने एक वाक्य नहीं बोला है सर, मैंने आपके बीच में नहीं बोला है सर, मैंने आपके बीच में नहीं बोला ओबीसी हिंदू नहीं है। गिरधारी यादव जी, आप जो कह रहे हैं हर पल एक नया रेवलेशन है, और मैं सोच में हूं, जो आदमी कह रहा है कि महिला बिल को हमने फाड़ा तब सस्पेंड नहीं हुए, आप इतने फक्र से कह रहे हैं, उनके बारे में मैं क्या कहूं? और नाविका, औजला साहब, ऐसी पार्टियों के साथ आपका क्या कॉमन है? मुझे नहीं पता। यदुवंशी श्री कृष्ण अगर हिंदू नहीं थे तो मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो? भगवान है हमारे, श्री कृष्ण यदुवंशी थे, आप वो भी कह रहे कि यादव हैं परंतु वो हिंदू नहीं है। ये मानसिकता को झलकाता है। और जहां तक ओबीसी महिलाओं की बात है, मान्यवर मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपके गठबंधन का, देखिए यादव जी बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए, आप अब पकड़े गए हैं और बहुत बुरी तरह से आप एक्सपोज हो गए हैं। दूसरी बात, अपने मंडल कमीशन को इस देश में खत्म करने का, मंडल कमीशन का विरोध इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने किया, कास्ट सेंसस नेहरू ने खत्म किया। कहां बोले जा रहे, क्या बोले जा रहे हैं भाई? जिन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट रिजेक्ट की थी, उनके तो आपके साथ दोस्ती हो गई है और बाकियों को आप नकार रहे हैं। और रेवंत रेड्डी ने जो ओबीसी समाज के लिए बोला कि कुर्मी समाज के डीएनए से बेहतर तेलंगाना डीएनए, उसके बारे में क्या विचार है आपके? Well, let me also get in, Mr. Shivdasan. Mr. Shivdasan, गिरधारी यादव जी सीपीएम के सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है हमारे साथ, उनको भी मौका देते हैं। Mr. Shivdasan, my question to you is, the Congress party here is saying no answers for the 13th of December. So the chairman of Rajya Sabha, the speaker of Lok Sabha were lampooned today. The chairman of Rajya Sabha was actually made into a caricature. Mimicry was done on the steps of parliament. There was laughter everywhere as if it was a comedy circus. And on top of that, videos were being made as if people were bunking college and having fun in the college canteen. Now that is the state of affairs. Placards being carried inside the parliament, shouting, all that has happened, led to suspensions. But here on the panel, Mr. Girdhari Yadav is even saying this, that he's extremely proud of the fact that he tore the women's reservation bill and was never suspended. He's actually taking pride in this. Is this the way Parliament of India should function, and is this the example and the legacy that you want to leave behind for future generation of what happened when you were the member of Parliament? See, this BJP-led government, this treasury bench, they are trying to ruin the legacy of the democratic process of the nation. We have very big democratic legacy, but they are not interested to promote this legacy. They are trying to implement their own idea, their own autocracy inside the parliament. See, the members of the parliament, those who are raising the question against this government, they are targeted by this treasury bench. They are trying to suspend them. There, the members of the opposition parties, they are unable to raise the question. If their voice is there, then how they are dealing, these things we are already examined. Now, around 150 members are suspended by this BJP-led government. Why it was happened? Earlier, these BJP leaders says disruption is the part of the parliamentary democracy. Why they are not make any statement on their earlier statement? They told disruption is a part of the democratic process. They
raised the flag. They raised the these. So are you saying? Placards. Are you They saying raised the voice. mimicry They, of the vice raised the president, shouted the slogan. chairman of Rajya Sabha, was justified? Because you're extremely hurt about the suspension, so mimicry of chairman of Rajya Sabha is justified. Is that what you're saying? I am coming to the point. I am coming to the point. Why you are madam, why you are silent on the suspension of 149 MPs? I'm not silent. I'm not silent at all, question. sir. And that question has been asked of the BJP representative. But I'm asking you: are you justifying the mimicry of the chairman of Rajya Sabha? Yes or no? I am coming to the question. You see, if 149 members were suspended, this is a serious situation. So various kind of protest and various kind of expression will come. We are unable to decide the manner which one is correct, which one is, but every time we should promote the positive protest and positive style of functioning. That is Shehzad Poonawalla, the treasury benches have the onus of running the parliament by suspending 142 members of parliament. Are you upping the ante? Are you leaving the opposition absolutely no choice? Navika ji, Sivadasan ji has just quoted Sushma Swaraj ji and Arun Jaitley ji. Arun Jaitley ji ever ran into the well of the house? Did he mimic the chair of the house? I mean, how can you even say this? And the statement of Arun Jaitley ji and Sushma Swaraj ji came in what context? When Supreme Court cancelled 122 licenses, and despite that the government was not willing to have a discussion at that point. Today there's an ongoing investigation. Speaker has already taken the action. And this is trend from 2018 onwards. You demanded discussion on price rise. We said, let's have price rise discussion. You went to Rafale. Then Rafale, the Supreme Court verdict came. You went on to some other issue of Pegasus. When the Pegasus verdict came, you went on to BBC and Adani. When the Adani verdict came, PBC issue has nothing came out of it. Then you have gone to Manipur. When we said, let's do Manipur Charcha, 267, you were demanding Prime Minister's statement, which is not possible. And when we had a discussion on Manipur, you ran away. So please tell me you are not interested in Charcha. Second point, I just want to ask you, sir, what glorious tradition are you talking about? The first government that was dismissed by Nehruji in using 356 was a left government. Today, the left is defending the actions, unjustifiable actions of Kalyan Banerjee. Imagine, I had never thought in my political lifetime that left would come out and start singing peens of Nehruji, who had brought in First Amendment, who had dismissed the first democratic elected government of left anywhere in the world, Nambudri Path government, the first person to put Majru Sultanpuri in jail, those who had put emergency, those who put half of the opposition leaders in jail and made the media crawl and bend. Those people are being defended by the left leaders. I have seen everything in my lifetime. At least you should not have defended Kalyan Banerjee's action. Are you defending TMC leaders' action? Well, Aujla ji, मेरा सवाल आपसे है, कोई मीटिंग ग्राउंड है या इसी तरह का व्यवहार इनसाइड पार्लियामेंट चलता रहेगा और मिमिक्री आउटसाइड पार्लियामेंट? क्या हम देश को अब यही नजारे दिखाते रहेंगे एज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट? देखिए, ये तो जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है। क्या पुरानी घटनाओं का चर्चा बेरवा देकर पार्लियामेंट चलाना है? जहां जो पार्लियामेंट का जो रूल है उसके हिसाब से चलाना है। जो हमारी आवाज दबाई जा रही है, आप ये देखिए, जिस आदमी के पास के कारण वो आदमी अंदर है, जिसने पास दिया है, उसकी कोई सस्पेंशन नहीं है, उसको हाउस का पूरा प्रिविलेज है। गिरधारी यादव जी, क्या सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ सरकार की, ट्रेजरी बेंचेस की है या विपक्ष का भी कोई रोल है संसद चलाने में? आखिरी सवाल। कहाँ हुआ? बिल्कुल, सरकार चलाना, नाविका जी, सरकार चलाना जिम्मेदारी है, सत्ता पक्ष का काम है, विपक्ष का नहीं है। हाउस चलाना, कोरम पूरा करना, सरकार चलाना, हाउस चलाना, ये ट्रेजरी बेंच का काम है, विपक्ष का काम नहीं है। लोकतंत्र में, संविधान में विपक्ष को विरोध करने के लिए का अधिकार दिया गया है। सत्ता चलाना, हाउस चलाना, कोरम पूरा करना, ये ट्रेजरी बेंच का काम है, हमारा काम नहीं है। अनप्रेसिडेंटेड सस्पेंशन। केवल एक वाक्य कहूंगा, मनमोहन सिंह जी का 2011 का बयान है जहां पर वो कहते हैं कि हाउस चलाना सबकी जिम्मेदारी है। आज मनमोहन सिंह जी के विचारों को औजला जी ने भी कचरे के कूड़े में डाल दिया है। मुझे पता नहीं था कि इतनी जल्दी ये बारी आएगी। Unprecedented suspensions in parliament really taken
amiss by the opposition raising their voice, and on the other hand mimicry of the chairman of Rajya Sabha, the Vice President of India, continues outside it. Is just anybody serious about Parliament, or is it just the common man paying taxes for running the House, where expenditure mounts but work comes to a naught? Is that the legacy for future that we're going to leave? It's a question every parliamentarian should ask themselves. We leave it at that. Thank you very much to all my guests for joining me on debate number 1.